You're watching the Election Express with Rahul Kamal, broadcasting live from Vadodara tonight. Good evening and a warm welcome. We are broadcasting tonight from the cultural capital of Gujarat, Vadodara. Welcome on board the Election Express. We are joined in this audience today by people representing all the three political spectrum over here. There are a lot of people who want Narendra Modi to be the next Prime Minister. There are also people representing the Congress party. You can see them in the Congress caps. And then we've got a lot of Aam Aadmi Party caps as well. And a special guest, he campaigns all across Vadodara. He looks like Narendra Modi. स्वागत है सर आपका इलेक्शन एक्सप्रेस में. आपका मैं देख रहा था अंदाज एकदम नरेंद्र मोदी जैसा है. कब से आप नरेंद्र मोदी की नकल उतारने की कोशिश कर रहे हैं? 15 साल से. ऐसे में 45 साल से बीजेपी में हूँ. थोड़ा करके दिखाइए जो आप पहले दिखा रहे थे. कैसे करते हैं आप नरेंद्र मोदी की नकल और क्यों आप नरेंद्र मोदी की नकल उतारना चाहते हैं? सबका साथ सबका विकास. अब की बार मोदी सरकार. अच्छा, वो लोग तो सब आपको फेंकू फेंकू कह रहे हैं. अच्छा ये बताइए, आपकी मोदी जी से मुलाकात हुई? मुलाकात हुई है. क्या सोचते हैं आप मोदी के बारे में? जैसे गुजरात का विकास किया है ऐसे पूरा इंडिया का विकास हो. बैठिए, स्वागत है आपका. What I want to do at the start of the show is give you a sense of the mood here on the ground in Vadodara. My colleague Simi Pasha travelled across the city to get a sense of why Narendra Modi chose to contest from here and what the voters of Vadodara think about the man who hopes to be India's next Prime Minister. This was Narendra Modi's only appearance in Vadodara this election season. A long drive in an open jeep as he made his way through the city to file his nomination papers. Varanasi might offer a challenge to BJP's prime ministerial candidate, but Vadodara, some say, will be a cakewalk. This is a he spent 5 years as an RS pracharak in the late 70s and early 80s. Town on a scooter. This is a place his karma bhumi. It's this piping hot cup of tea and Mahida to BJP's PM nominee Narendra Modi. Kiran, along with Shubhangini Devi Gaikwad and erstwhile Royal, were among the 5 people who nominated and proposed Narendra Modi's name from this city. The idea was to showcase Narendra Modi's appeal, the wide range of his appeal from this BJP batch. The small tea stall in Vadodara's Khande Rao. Brisk business. Office goers and college students stop by for a cup of tea prepared by Kiran Mahida. It's not just his sweet inspiration that's drawing crowds. The fact that Chaiwala was invited by the BJP's prime ministerial candidate when he filed his nomination has hero. खुशी किसको नहीं होगी आज. इतने बड़े प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाए मोदी जी जब होने जा रहे हैं और मेरे जैसे छोटे इंसान को प्रपोज नाम किया है तो खुशी तो बहुत होगी ना. और आपको लगता है जैसे आजकल चाय पे चर्चा होती है मोदी जी की, चाय जो है बीजेपी का एक तरह से कमल के बजाय चाय सिंबल बन गई है, तो और वो चाय ही है जो आपको और मोदी जी को कनेक्ट करती है. इसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, वो तो चाय तो कनेक्ट करती है, चाय की वजह से मेरा. A massive surge of support in favor of Narendra Modi. We are here live in Vadodara tonight with the Election Express and we've got a special guest who's painting the Election Express. पहले ये बताइए, पेंटिंग बनने के बाद हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी पेंटिंग? हाँ, जरूर मिलेगी. क्या पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं आप? बस ये इलेक्शन एक्सप्रेस
जो है यहाँ जो एक्सप्रेस चल रही है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इस तरह से एक्सप्रेस भी चल रही है, तो इसका आप फॉलो कर रहे हैं इलेक्शंस को? या जरूर। नरेंद्र मोदी यहाँ वडोदरा से लड़ रहे हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम पार्टी तो किसी को एक को ऐसे नहीं सिलेक्ट करते, लेकिन जो भी आएगा वो अच्छी तरह से राज करे, अच्छी तरह से देश चलाए, बस इतनी तमन्ना है। One of the key focuses of today's show is whether the Narendra Modi model of governance in Gujarat, is it marketing hype, is it reality? How much of this is trumped up and how much of it can be seen on the ground in Gujarat? Let me ask a couple of people here. ये बार बार गुजरात में नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात होती है, आप लोगों को नजर आता है कोई मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की? जैसे वो लोग कह रहे हैं कि मोदी फेक हुए, वो ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलता है, आपको, आप लोग गुजरात से, आपको नजर आता है मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? वो फेंक को इसलिए बोलते हैं कि गुजरात से कांग्रेस को फेंक दिया है, भ्रष्टाचार को फेंक दिया है, इसलिए बोलते हैं। गुजरात में जो डेवलपमेंट हुआ है, मैं आपको बताऊं, 24/7 365 दिन अगर किसी एक स्टेट में बिजली मिलती है तो गुजरात में मिलती है। 108 की सर्विस अगर कहीं होती है तो पहले गुजरात में स्टार्ट हुई। हर एक विलेज में पक्की सड़क गुजरात में है, हर एक विलेज में पीने का पानी अवेलेबल गुजरात में है, हर एक विलेज के साथ ई कनेक्टिविटी गुजरात में है। ऐसे कई चीजें हैं जो बाकी लोगों को यहाँ सीखने को आना पड़ता है। कई अवार्ड्स इन्हीं की कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमको दिए हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ही अवार्ड देती है, तो कांग्रेस के प्रतिनिधियों को जवाब देना होगा कि कई सारे गुड एडमिनिस्ट्रेशन के अवार्ड्स, बेहतर प्रशासन के अवार्ड्स कांग्रेस की ही यूपीए सरकार ने मोदी को दिए। ये सब रूटिंग में लेते हैं, अवार्ड का सवाल नहीं है, पब्लिक में नहीं जाता है बात, पब्लिक को फायदा नहीं मिलता है, पेपर सब बताता है और अवार्ड ले जाता है। लेकिन नहीं, आप बोल रहे हैं कि आपकी सरकार फिक्स्ड अवार्ड करती है, अवार्ड तो यूपीए दे रही है। फिक्सिंग अवार्ड, दे आर प्रिपेयरिंग द पेपर एंड ऑन ग्राउंड ऑफ दैट पेपर, बट फायदा पब्लिक को मिलना चाहिए, वो अवार्ड का फायदा। आप कह रहे हैं कि मोदी की डेवलपमेंट सिर्फ फाइलों में है, जमीन पे नहीं। बिल्कुल, अगर मोदी जी की डेवलपमेंट फाइलों में नहीं है तो किसी भी प्रदेश का पैमाना जो होता है, एजुकेशन होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, फार्मर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी होता है, एजुकेशन सिस्टम है, स्टेट का जो डेप्थ है वो भी पूरी बुरी तरह नीचे जा चुका है। लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बिल्कुल खराब है। एजुकेशन में 42% ड्रॉप आउट रेशियो है। 6 लाख के करीबन फार्मर्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बैठे हैं। तो ये मॉडल को क्या राष्ट्र स्तर पर लागू करके? आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के मॉडल में कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, पीछे चलते लोगों से पूछते, आपको लगता है कि मोदी का मॉडल असली है कि अफसाना? बिल्कुल रियल है। यहाँ पर हम लोग रात को भी 3, 3:30, 4 बजे अकेले भी निकल जाएंगे तो हमको कोई डर नहीं है बहन बेटियों को। जबकि और कोई स्टेट में आप जाइए, वहाँ पर बहन बेटी 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती है। एक्सपायरी डेट हर किसी में होती है, चाहे खाने की चीज में, चाहे मेडिसिन में। केजरीवाल में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का मॉडल यहाँ जमीन पे दिखता है? वेरी मच, वी सी लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जेल में है कि वो किसका दिया था, वो गुड एडमिनिस्ट्रेशन है। उनको बोलने दो, उनको इतने ऐसे नहीं चलेगा, इतने IAS IPS जेल में गए, ये गुड एडमिनिस्ट्रेशन के निकाली है, ये हमको बताए। IPCL बेचा, हटिए, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। बैठिए, ऐसे नहीं चलेगा। आप जाके बैठिए वापस, आप भी जाके बैठिए वापस। ऐसे नहीं चलेगा। अरे आप बैठिए, ऐसे नहीं चलेगा। आप लोगों को बैठना होगा, आप लोग कैरिड अवे नहीं हो सकते, एक्साइटेड नहीं हो सकते, आपको बैठना पड़ेगा। I'll try and get this crowd under control. Clearly passions running very high in Vadodara, but what I want to do right now is play out an interaction I had with students at MS University, at the oldest fine arts college in India, at a 125-year-old theatre. I asked them the same question: is the Narendra Modi model of development for real? This is what they had to say. The Election Express is currently at a 125-year-old theatre at the MS University in Vadodara. This is the first institute in India which started giving degrees in music and in performing arts. And we are joined by students from a cross-section of disciplines over here. All of them very liberal in their education. How liberal are they in their thoughts? And what do they make of Narendra Modi's model of development?
बहुत देश में चर्चा होती है नरेंद्र मोदी के मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की। मोदी वडोदरा से लड़ रहे हैं। मैं यहाँ की युवा शक्ति से, यहाँ की यंग जनरेशन से जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से मोदी का मॉडल मार्केटिंग हाइप ज्यादा है या आपको जमीन पे नजर आता है? सर बिल्कुल जमीन पे है उनका मॉडल और उन्होंने बहुत काम किया है। आप देख सकते हैं उन्होंने पीपीपी मॉडल से हमारा बस डिपो बनाया है जो इंडिया में नंबर 1 बस डिपो है। उन्होंने रिवर फ्रंट बनाया है। आप देख सकते हो दिल्ली में क्या हुआ था नदी को लेके, और हमारे गुजरात में अहमदाबाद में जो साबरमती है उसका कितना अच्छा रिवर फ्रंट बनाया है। उन लोगों ने कितने रुपए का करप्शन किया है वहां पे वो सब लोग देख सकते हैं। इतने उससे कम रुपए में उन्होंने रिवर फ्रंट बनाया है। आप कह रहे हैं कि जितना पैसा बाकी स्टेट्स में करप्शन में खर्च होता है उससे कम पैसे में मोदी रिवर फ्रंट बना देते हैं, शानदार बस डिपो बनाए थे। मैं बता दूं कि दिस इज द क्राउड विच इज इन फेवर ऑफ नरेंद्र मोदी, दिस इज द क्राउड दैट इज अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, फार फ्यूअर देन दोज इन फेवर ऑफ नरेंद्र मोदी। लेकिन आप ऑपोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है देश में। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि वडोदरा पहले जैसा था अब जैसा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है और बहुत डेवलप हो गया वडोदरा। देखिए जिन रिवर फ्रंट की इन्होंने बात की है तो उनके ही पास्ट के एमपी बाड़ू शुक्लाना, उनका खुद का एक एजेंडा था कि बड़ौदा की जो नदी है विश्वामित्री, वो रिवर फ्रंट साबरमती से बहुत अच्छा बनाएंगे। तो पिछले साल के चुनाव के घोषणा पत्र बड़ौदा की जनता जानती है, बड़ौदा के मतदार जानते हैं। और वो जो बात कर रहे हैं कि रिवर फ्रंट अहमदाबाद में बनाए तो हमें बड़ौदा का वोट करना है, अहमदाबाद जाके वोट नहीं करना है, तो कहाँ का विकास है? क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप बार बार मोदी पे लगता है। कौन इसका जवाब देना चाहेगा कि मोदी उद्योगपतियों के साथ मिले हुए हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों का वो फायदा कराते हैं? नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर मोदी जी का देखा जाए, बैकग्राउंड ही कम्प्लीटली देखा जाए, तो उनकी मम्मी जो है वो 8 बाय 8 के रूम में तो रहती है। अगर वो अपने ही जो लोग हैं अगर वो सपोर्ट करते तो आज उनके घर की तो ये हालत ना होती। मैं और एक बात जोड़ना चाहूँगा कि बाकी सब सेक्टर है, लेकिन स्पेशली अगर यूपी में देखो तो वहाँ पे शिक्षा की क्या हालत है, और गुजरात में देखो तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि नेशनल हायर एजुकेशन समिट, जिसमें उन्होंने 32 to 35 कंट्री में से बाहर के एक्सपर्ट बुलाए, पूरे भारत में से हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को बुलाया, यहाँ की 9 यूनिवर्सिटी को 9 सब्जेक्ट देके एक रिसर्च का एक काम आगे बढ़े, यहाँ के स्टूडेंट न सिर्फ स्टेट का विकास करे बल्कि पूरे भारत का विकास करे। तो मोदी जी सिर्फ गुजरात का नहीं बल्कि भारत का विकास करते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। वो हर एक क्षेत्र के तह तक जाके पूर्ण भारत का विकास करना है। अगर मोदी किसी कॉर्पोरेट का फायदा कराते भी हैं तो वो अपने निजी फायदे के लिए नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि उससे वहां पर रोजगार आता है, बिजनेस आता है, इन्वेस्टमेंट आता है और आप जैसे यंग लोगों को जॉब मिलती है। जॉब की बात तो छोड़ो, यहाँ पे गुजरात के अंदर कितने बेरोजगार लोग पड़े हैं जिनको खुद को जॉब नहीं मिल रही है। और जैसे वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सेल्फ फाइनेंस कॉलेज तो गुजरात के अंदर है, उनके बारे में वो क्यों बात नहीं कर रहे हैं? आप देख रहे हो हर साल 5% फीस बढ़ रही है। तो ये काहे का बेरोजगार है? यहाँ पे बहुत गरीब बच्चा भी पढ़ने आता है और अमीर बच्चा भी पढ़ने आता है। तो ये बेरोजगार रहे, ये कैसे डेवलपमेंट है गुजरात के अंदर? ये तो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। 150 मिलियन यंग वोटर्स हैं, उनका ख्याल बेहतर कौन रख सकता है? राहुल गांधी जो कि यंग है? नहीं, उस पे आते क्यों आपके हिसाब से देश के युवा के लिए, जॉब्स क्रिएट करने के लिए, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से मोदी बेस्ट है? कौन बोलना चाहता है? एक ग्लोबल मीडिया या फिर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहते हैं हम, वो मोदी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हम गुजरात में हैं फिलहाल। अगर इसी स्टेट को, गुजरात को या छोड़ो आप बड़ौदा को अगर कंपेयर करते हो किसी भी अदर स्टेट से, तो ये फार बेटर है। जो है वो प्रूव है। आप कह रहे हैं कि जो है वो प्रूवन है, राहुल का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। राहुल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है उसके बारे में कोई पता नहीं। सर आज यहाँ पे बात चले कि एजुकेशन के मामले में मेरे भाई ने ऐसा बताया कि नहीं, अरे आप लोग तो एकदम नेता की तरह, मैं सवाल पूछता हूँ कुछ जवाब देते हो कुछ। मैंने बोला कि मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन है, राहुल का ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन नहीं। आपका क्वेश्चन था कि युवा का ख्याल कौन रख सकता है, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा नरेंद्र भाई रख सकते हैं। क्योंकि एक लड़की के पीछे एक एक्स गृह मंत्री लग जाते हैं, पूरी सीआईडी लग जाती है, 3 आईपीएस लग जाते हैं, 3 जीपीएस लग जाते हैं, कितने पुलिस कांस्टेबल लग जाते हैं। तो युवा का ख्याल एक लड़की के ख्याल के लिए तो नरेंद्र भाई हो सकते हैं ना। पर ये एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं लड़कियों से पूछना चाहता हूं। नहीं, लड़कियों की सुरक्षा का मामला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों एक लड़की के पीछे राज्य का गृह मंत्री, पुलिस फोर्स, सबकी सब निगाह डाल रहे हैं? आपको लगता है कि विमेन थोड़ी इनसिक्योर फील करती है? नहीं, गुजरात में तो बल्कि बहुत अच्छा है। वही तो वो अच्छा है ना, उसको सिक्योर फील होता है, बाकी कोई जगह पे नहीं होता। हम 2 बजे भी जाते हैं, देन हाँ एक कॉल पे हमें कोई भी प्रॉब्लम है दे कैन कम। वो एक कॉल पे यहाँ पे पुलिस खुद हमें घर तक छोड़ने आती है। ये सुविधा आई डोंट थिंक सो कहीं और स्टेट में।
I've been from Bombay and coming here to study from Bombay. I have not seen this happening in Bombay also. खत्म करने से पहले ये बताइए कि देश में अच्छा पीएम कौन बन सकता है, मोदी की राहुल? क्यों आप? एक बात है, अभी विधानसभा चुनाव हुआ था तब राहुल गांधी खुद यहाँ पे आए थे और वो उनका ऐसा स्टेटमेंट था कि भाई आपके यहाँ पे 24 घंटे बिजली होती है, तो उन्होंने बोला कि भाई आपकी दिल्ली की तरह थोड़ी ना होता है। तो वही प्रूव करता है। इवन महाराष्ट्र के लोग, जो महाराष्ट्र के जो गांव हैं छोटे छोटे, वो लोग 108 हमारा गुजरात का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी ने यहाँ पे 108 लगवाया है, तभी वो महाराष्ट्र में आ पाता है। हमारा वाला जी सर जो बात कर रहे हैं, मेरे भाई ने बात की नवरात्रि के टाइम गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी के शासन में 12 बजे बंद कर देते थे, कांग्रेस के शासन के अंदर बड़ौदा की आम जनता को जाके पूछो सुबह 6 बजे तक यहां पे नवरात्रि होती थी। क्यों आज 4 घंटे कम कर देने पड़े? वो मेरे मित्र को सवाल करो आप। सर पहले क्रिकेट मैच होती थी तो राइट्स होते थे। मेरे घर में मेरे बाबा बोलते थे बेटा आज मैच है, संभल के जाना, राइट्स हो जाएंगे। अभी कहाँ राइट्स होते हैं? अगर केंद्र सरकार ने 108 का स्टार्ट किया है तो वो हर एक स्टेट में क्यों नहीं है, सिर्फ गुजरात में क्यों? आप सब ने वक्त निकाला, आपके एग्जाम्स अभी खत्म हुए, आप लोग काफी टेंशन में हो, तो कम से कम बहुत टेंशन में था एग्जाम के टाइम पे। टेंशन नहीं है यहाँ पे, एकदम कोई टेंशन नहीं है। चलिए आप लोग एग्जाम के बाद हम लोगों के साथ आए, आपने अपनी बात रखी, इलेक्शन एक्सप्रेस से आपने वक्त दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। A very interesting interaction there with students at the MS University. Our painting seems to be making good progress. What I want to do before I go back to this audience is give you a sense of where Gujarat was 12 years ago when Narendra Modi came to power and where Gujarat is now. That will give a sense of whether or not there has been real development, because what we are debating tonight live in Vadodara is the Narendra Modi model of growth in Gujarat, and can it serve as a template to be replicated in other states across the country. So what is the Modi model of development? Where was Gujarat? Where is it now? The Election Express Bureau files this story. मूल बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। एक गुड गवर्नेंस, दूसरा डेवलपमेंट, सुशासन एवं विकास। टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई है। जो हीरे को काटते हैं, हीरों को काटते हैं, उनसे मैंने बात की है, वो मर रहे हैं, कुपोषण है, बच्चे भूखे हैं, किसान रो रहा है, सबसे ज्यादा लेबर डिस्प्यूट्स हैं, मगर मार्केटिंग है, टीवी पे आ जाते हैं, बात हो जाती है। तो रियलिटी गुजरात मॉडल की ये है। Narendra Bhai Modi has pitched his entire prime ministerial campaign on one plank, that of development. Modi is constantly reminding India that only he can guarantee growth and economic stability, and he points to Gujarat as proof of his abilities, a proof of the pudding that his detractors refuse to taste. मोदी साहब हंसे, बड़ा भारी विकास की बात करते, मेरा जवाब ही नहीं आया अभी तक। मैंने कहा सबसे ज्यादा बीमारियां और सबसे ज्यादा गंदी नदियां अगर कहीं हैं हिंदुस्तान में तो गुजरात में। But what is the reality and what is myth? गुजरात ने सोलार पावर में काफी काम किया। Modi's Gujarat growth story is essentially founded on the simple policy decision to give roads, electricity and water to everyone. 8 hours of electric supply for irrigation for all of Gujarat's 18,000 villages and 24/7 domestic power supply that has covered up to 97% of all villages. Gujarat has recorded the fastest growth in agriculture, 10.97% amongst all Indian states from 2001 to 2010. Gujarat's unemployment rate in 2012 was the 4th best in the country, behind Chhattisgarh, Karnataka and Madhya Pradesh. In physical infrastructure, there have been specific interventions by government for industry. The state's industrial growth jumped from 3.95% during 2001-2004 to 12.65% during 2005-2009. A lot of credit for this goes to the Modi government's policy of supporting big business through infrastructure and availability of land. Few incentives, however, have been given to small-scale industries in cities such as Surat. In education, Gujarat's track record is not all that good.
and its spend has been less than the national average, only seeing a 1% increase of the total budget allocations between 2006-07 and 2012-13. In healthcare, the report on Gujarat is mixed. The state's infant mortality rate, IMR, was 38 in 2012, lower than the national average of 42, but much higher than states such as Tamil Nadu with 21 and Maharashtra at 25. The maternal mortality rate, MMR, or the number of women dying from childbirth per 10,000 births, is 122 for Gujarat, well behind Kerala with 66 and Maharashtra with 87. In fiscal health, Gujarat has brought down fiscal deficit by half, but states like Rajasthan, Odisha and Assam have done better. On individual counts, there is someone or the other who has performed better than Gujarat, but on an average, Gujarat comes out as performing between good and very good. So there is no doubt that under Narendra Modi's tenure, Gujarat has grown. In addition to that, no matter what Narendra Modi may or may not have given to the state, there is a growing sense of pride amongst the people of the state, at least during his tenure. And that's exactly what he has been promising to the people of India if he were to become the Prime Minister of the country. With camera person Subodh Saxena in Vadodara, Jaskir Singh Baba for Headlines Today. Well, several strong accomplishments, but a couple of black holes as well. I want to take up the black holes. नरेंद्र मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड पे हमने रिपोर्ट चलाई, उसमें निकला कि कई सारे पैरामीटर्स में गुजरात अच्छा कर रहा है, लेकिन मैल नरिशमेंट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है, मटर्नल मोर्टेलिटी है, इन सब एरियाज में गुजरात अभी भी पिछड़ रहा है। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बड़े उद्योगों का, बड़े कॉर्पोरेट्स का तो फायदा करते हैं, लेकिन गरीब आदमी मोदी के राज में पिछड़ता है। राहुल जी, मुझे एक बात कहनी है, जरा शांति से सब सुन लेना। अमेरिका डेवलप कंट्री है, फिर भी आज अमेरिका में भी अगर हर एक लोगों को पूछेंगे तो लोगों का एक्सपेक्टेशन इतना होता है कि कभी भी उनको अपना 100% सेटिस्फैक्शन नहीं लगता है। तो बात यह है कि यहाँ किसी को अच्छा और बुरी बात करने की कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि अभी जो हमारी पोजीशन एज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट, आई एम फ्रॉम द MSME, आई एम नीलेश शुक्ला माई सेल्फ, द बेस इज कि यहाँ जो चल रहा है पूरे देश के अंदर, जो मिडल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज की जो पोजीशन है, उस पोजीशन में अगर हमें इंडस्ट्रीज और उनका इन्वेस्टमेंट, उनके रिलेटेड वेंडर डेवलपमेंट, उनके रिलेटेड मैन पावर, ये सब जो सिस्टम है। नहीं, पर आप बिजनेस की भाषा कर रहे हैं। मोदी के क्रिटिक्स ये कहते हैं कि बिजनेसमैन के लिए तो बेस्ट है मोदी, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिए क्या मोदी उतने ही हिसाब से अच्छा है आपके हिसाब से? नहीं, हम वही कहना चाहते हैं, जैसे अभी बिजली की बात की कि अपने यहाँ 365 डेज गुजरात में बिजली मिलती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इंदिरा नगर का गांव है, अभी भी वहाँ पर बिजली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बिजली है ही नहीं। 32 वहाँ पर गांव है, वहाँ पर बिजली का नामो निशान नहीं है। क्यों? वो आया ही नहीं है नामो निशान। वहाँ पर भी रोड है लगा हुआ है कि ये योजना का वो रोड है, वहाँ रोड नहीं है। वहाँ के लोगों पर इलेक्शन कार्ड है, हम पूछते हैं आप किसको वोट देंगे? हाँ, हमारे जो मुखिया आएंगे, जो पैसे देंगे हम उनको दे देंगे। अभी भी वहाँ पर बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है। थोड़े घरों के बीच में एक हैंडपंप लगा होता है, दे आर गोइंग टू हैंडपंप, और वो पानी वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ को उनको काम के लिए जाना पड़ता है, नज़दीकी होता है, वो भी है केवड़िया वो है। और वहाँ पर हॉस्पिटल सबसे बड़ा सिर्फ राजपीपला में एक हॉस्पिटल है। अगर वहाँ से किसी का भी एक्सीडेंट हुआ वो बड़ोड़ा आना पड़ता है इमरजेंसी में, और अराउंड 80 किलोमीटर से अगर एक्सीडेंट में किसी को इमरजेंसी हुआ तो यहाँ। पर हकीकत ये है कि किसी भी स्टेट को उठा लो, वहाँ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम निकल ही आएगी ना। ऐसा नहीं है, आप किसी भी स्टेट में उठा लो, खड्डा खोजना है तो खड्डा यूपी से बस आई है। वहाँ तो यहाँ का स्टेट हाईवे जितना अच्छा है वो तो तुलना छोड़ दो, यहाँ में गांव में जो सड़क है गुजरात में, वैसे यूपी की स्टेट हाईवे नहीं, ये हकीकत है। लेकिन सर विकास यहाँ कहाँ है? हमने तो देखा यहाँ विकास कहीं दिखता ही नहीं। जहाँ पानी का मतलब कहीं सोर्सेज दिखता है, लेकिन बड़ौदा में भी कहीं जगह पे अभी भी शट डाउन चलते हैं, लाइट तो आती नहीं, यहाँ बड़ौदा में भी नहीं आती। एक सेकेंड, बाकी लोग भी आना चाहते। अगर गुजरात में डेवलपमेंट नहीं हुआ तो 15-20 साल से भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है और हर एक इलाके से आ रही है, चाहे तालुका पंचायत हो, जिला परिषद हो, या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, या विधानसभा, हर एक जगह पे बीजेपी जीत के आती है। जबकि आदिवासी बाहुल है, शेड्यूल कास्ट का जो बाहुल है, उसी इलाके जहाँ के गरीब तबके के लोग रहते हैं,
वहीं से भी बीजेपी जीत के आती है। आप कह रहे हैं कि चारों तरफ बीजेपी जीत रही है और जो उसकी गैप है वो लगातार बढ़ती रहती है। आपको लगता है कि मोदी के मॉडल में दम है? जो जीत के आती है वो इसकी दलील नहीं है कि वो विकास कर रहे हैं। जीत के अंदर तो बहुत सारे मतलब के गपगोले और ये होता है, घोटाले होते हैं। अच्छा, दूसरा के सॉरी, अभी किसानों ने 3 साल के अंदर 54 किसानों ने आत्महत्या की, सुसाइड्स की, लेकिन उन्होंने मोदी ने क्या बताया, सिर्फ एक ही आदमी ने। आपको कैसे मालूम 54 ने की? यस, इन गुजरात समाचार, इन आर गुजरात समाचार ऑलरेडी पब्लिश एंड आई हैव रेड इट। एंड सेकंड जो इंडस्ट्री है उनको 45,000 एकड़ जमीन सिर्फ 1 रुपये में दी है। ये इम्पोर्टेंट आरोप है जो बीजेपी पे लगता है, वो ये कि मोदी बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़े सस्ती में जमीन देते हैं, ऐसा क्यों गरीबों को भी दे दे? ऐसा नहीं है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी की एक आइडेंटिटी है कि वो गरीबों को आगे लाना चाहते हैं और इंडस्ट्रियल को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री आएगी और लोगों को रोजगारी मिलेगी, और रोजगारी मिलती ही है। गुजरात मॉडल 1 है, पूरा हिंदुस्तान ने कबूल किया है और हिंदुस्तान की सब जनता इस बार नरेंद्र मोदी को वड़ा प्रधान बनाएगी। आप कह रहे हैं कि अगर उद्योग लगता है तो उससे रोजगार बनता है और आप जैसे ही लोगों को नौकरी मिलती है, ये भी बात सही है। अगर आप इंडस्ट्री खींच के लाते हो, टाटा आता है, अंबानी आता है, तो जो नौकरी पैदा होती है उससे वडोदरा और गुजरात के लोगों को फायदा होता है। सही है कि उससे फायदा होता है, लेकिन आप देखो कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप देखो, आप जाके देखो, जितना गुजरात का पॉपुलेशन है उसमें आपको यहाँ पे दूसरी भी जॉब्स हैं, जैसे कि टीचर्स हैं, उनको 5,000 पे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है। इंजीनियर आज एक बाहर निकलता है, उसको 8,000 सैलरी मिलता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 8,000 में वो क्या कमाएगा, कैसे घर चलाएगा? ये प्रॉब्लम तो देश में हर जगह पे है मैडम। फिर नरेंद्र मोदी का मॉडल इंडिया के दूसरे स्टेट से अलग कैसे है? आप ये बताइए, आप दूसरे स्टेट के साथ कंपेयर कर नहीं, पर यहाँ की सड़कें लीजिए, बिजली लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, बेटर। आप हमारी विश्वामित्री रिवर को देख के आइए, आप हमारी बड़ौदा में खड़े हो, विश्वामित्री रिवर को देख के आइए, वो रिवर्स को जोड़ने की बात करते हैं। सर, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, कल की ही बात है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी सर ने खुद बोला है गुजरात मॉडल भारत के दूसरे राज्यों में नहीं चल सकता। क्या गुजरात का मॉडल देश के बाकी राज्यों में चल सकता है? कैन द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इन गुजरात बी रेप्लिकेटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री? You are watching the Election Express being brought to you live from Vadodara. This is where Narendra Modi is contesting in these elections from. There's a festival-like, carnival-like atmosphere here in Vadodara, and we're debating whether the Narendra Modi model of development can be replicated in other parts of the country. मैं वही सवाल उठाता हूँ कि क्या मोदी का मॉडल आपके हिसाब से देश के बाकी राज्यों में इंप्लीमेंट हो सकता है कि नहीं? क्योंकि लोग कहते हैं, सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए, लोग कहते हैं कि गुजरात समृद्ध राज्य है, पहले से ही अच्छा कर रहा था और इस वजह से ये वाला मॉडल नीतीश कुमार कहते हैं गरीब राज्यों में, पिछड़े राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। अगर गुजरात में डेवलपमेंट नहीं होता तो दूसरे राज्यों के पीपल यहाँ पर पढ़ने क्यों आते हैं? एमएसयू में आज देखा जाए तो सबसे ज्यादा बाहर के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। सेकेंडली, जॉब्स, बाहर के लोग यहाँ पर जॉब्स करने आते हैं, क्यों? उनके स्टेट में जॉब नहीं है। हाँ, तो 12 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया था? कुछ नहीं किया था। और सेकंडली, जब भी राहुल गांधी से पूछा जाता है तो वो अपनी दादी, मम्मी और पापा की बात करते हैं, कभी डेवलपमेंट की बात कभी नहीं की उन्होंने। अच्छा, आपके हिसाब से गुजरात का मॉडल रेप्लिकेट हो सकता है बाकी राज्यों में? हो सकता है, पर ये कोई बात नहीं हुई, दम से समझाना पड़ेगा कि आपके हिसाब से क्यों रेप्लिकेट हो सकता है? आपके हिसाब से रेप्लिकेट हो सकता है मैडम? कैन द गुजरात मॉडल बी रेप्लिकेटेड एल्सवेयर? I think it's important to understand that the country needs a very special model to develop. I have traveled to all parts of the country, including some of the very backward states, and I can tell you that those people are really crying out for development. They really want. But Gujarat is a developed state, was already a developed state, so Narendra Modi has helped improve that. Can that model be cut, copied and pasted in a state like Bihar? Well, without really focusing on whether you can replicate it or not. But I think there are a lot of points which can be copied, there are a lot of areas which can be developed. Development is a very localized issue. So some parts of Gujarat model can be taken, some of it has to be developed by the creativity of the local leaders too. आप कह रहे हैं कि जो बातें कॉपी हो सकती हैं वो कॉपी हो सकती हैं, जो बातें नहीं कॉपी हो सकती
उनको नए राज्य में जाके नए तरीके से नरेंद्र मोदी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे इतनी सुरक्षा है तो नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो 10,000 सुरक्षाकर्मी क्यों इम्प्लीमेंट करे गए थे? और सारी यहाँ की वडोदरा की सड़कों को खड्डों से खड्डे खोद दिए गए थे, सारी पूरी वडोदरा की सड़कों पे खड्डे खोदे थे जो उनके निशान अभी भी हैं। आम जनता को मोदी जी से दूर क्यों रखा गया? ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी लोगों से मिलते क्यों नहीं है? आप तो मिल जाते हैं डुप्लीकेट मोदी, असली मोदी ऐसे जनता के बीच में नहीं आते। हेलो, वो अक्के इंडिया का संभाल रहे हैं, मैं पूरा बड़ौदा का संभाल रहा हूँ। बड़ौदा का संभाल रहे, आप ही काफी है। अच्छा मुझे ये बताइए भाई साहब, आप कौन है? आप हमारे शो में कहाँ से आ गए? हाँ एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, हमारा शो चल रहा है, आप लोग रिकॉर्डिंग करें क्या? हाँ मैं हूँ सीनियर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हूँ यहाँ इलेक्शन कमीशन से, कलेक्टर ऑफिस। यहाँ करिए आपके जो फंक्शन चल रहा है सब जॉइंटली फंक्शन चल रहा है, बीजेपी आप कांग्रेस, इसका मैं निरीक्षण करने आया हूँ, ऑब्जर्वेशन करने आया हूँ। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने सर? हमारे को परमिशन है कि नहीं कि परमिशन डिनाई कर दें? मैं परमिशन के साथ आया हूँ। परमिशन के साथ आए। तो इलेक्शन कमीशन वैसे काफी अच्छा काम कर रहा है और इस सब के लिए हम सराहनीय है। मतलब हमारा फ्लाइंग स्क्वाड है, फ्लाइंग स्क्वाड छापा मारते हैं। कहीं छापा मारा अब तक आपने? अभी चालू है कामगिरी हमारी। तो क्या फ्रॉड हो रहा है यहाँ? क्या फ्रॉड पकड़ा इलेक्शन? कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, कोई फ्रॉड नहीं है, अच्छा काम चल रहा है। आचार संहिता नहीं का भंग ना हुए वही देखते हैं। अब तक कोई आचार संहिता को तोड़ रहा है कि नहीं तोड़? नहीं अभी नहीं टूटा है, जांच चल रही है, कोई अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है। चलिए इलेक्शन कमीशन लगातार सतर्क है, हमारे शो में भी आ गया बिन बुलाए, लेकिन वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 आपकी जिम्मेदारी है। मुझे इलेक्शन कमीशन भेजा है, मुझे इलेक्शन कमीशन भेजा है। नहीं स्वागत है इलेक्शन कमीशन का, स्वागत है इलेक्शन एक्सप्रेस पे। वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। We've spoken so far about the Narendra Modi model of development. The man challenging Modi in Vadodara is Madhusudan Mistry, General Secretary of the Congress Party, very close to Rahul Gandhi. He is the backroom strategist who helps draw up Rahul Gandhi's battle plans. I caught up with Madhusudan Mistry earlier in the day as we travelled through Vadodara on his campaign trail. This is what Madhusudan Mistry had to say. We are on the campaign trail with Narendra Modi's challenger in Vadodara, senior Congress leader Madhusudan Mistry. Thank you very much, sir, for joining us on the Election Express. Many would say that you are a suicide bomber who's been sent into a war which you know you cannot win. Vadodara is the heart of Narendra Modi's stronghold, and you've been sent here as cannon fodder. That is what he believes. I don't. The way that I am getting a response from the people all over in the city. Today is the 4th day, going to every assembly segment. People are installing a trust in me, saying, yes, you work hard, you will win. Not only that, some people just come personally to greet and saying me, it is only the hard work that will make you win, and I'm pretty sure. See, out of 7 assembly segments, 4 assembly segments are good for us. We have not worked in the past, but that doesn't mean we can't change the game. And how do you intend to change the game at a time when there is supposed to be the workers? There are so many workers now who had, first of all, that I don't belong to Baroda. I studied here. In fact, I did my postgraduate in MS University long back there. So the internal, if there is any dissatisfaction, whatever, that is not here at all. And everybody is now united and working, with us. Is your fight symbolic? Is it to make a point? Or are you hoping that you will beat Narendra? Symbolic. It is not symbolic at all. I am fighting to win. It is not that I will be not just, saying people that this is a symbolic fight. Nobody in this group is here that it is a symbolic fight. It is a fight to win for the Congress. Why is the Congress party, sir, doing so badly in these elections? All opinion polls indicate the Congress crashing to its worst tally ever. You are a key part of the Rahul Gandhi strategy team. Why is that strategy backfiring so bad? What the media mainly has been doing is, that everybody is targeted in the sense that you create an atmosphere. And with so many channels and so many people, for the reason best known to them, I don't want to elaborate it. Everybody is thinking that it is the Narendra Modi.
What they forget is that every parliamentary constituency has its own characteristic. If you field A candidate, its chemistry changes. If you field B candidate, it is completely changed in the state. That is where we are relying on. It is not just by giving into a media and creating an atmosphere. No, but the media cannot. Hold on a minute. That you can win. Otherwise, all media baron would have been, in the election fray and would have gone in parliament. No, but we saw the swankiest bus station that anyone has seen here in Vadodara. Yeah. Massive roads. The election express is coming from Uttar Pradesh. Yeah. The roads over there are a mess. The roads in Gujarat are like Amul butter, they are smooth. There's a big difference. There is surely some model of development that people are liking. Come on, he had not created these roads. This has been in Gujarat for years. The Ministry of the Gujarat has made the road as one of the best roads before he came here. There is a security always in Gujarat, before he became the Chief Minister. Women used to go in overnight. Thousands of young boys and girls used to go overnight in a Garba. Not created by him, that atmosphere. It is created by the people of Gujarat, and it is a model by the people of Gujarat, not him. He has simply trying to take the credit, nothing else. There are some people in the Congress party who believe, Mr. Mistry, that a term in opposition will do the Congress party a lot of good. That Rahul Gandhi will get an opportunity to implement the change and the rejuvenation that he wants. I differ. I am pretty sure that there will be UPA 3 and we will be winning it. I am a full confidence of it. Why is the spirit amongst the Congress cadre so low? Why are they reconciling themselves to defeat? Where is it? Where the spirit has lost? Everybody is fighting with a tooth and nail. Everybody want to win. Where is it that they are, kind of their loss of confidence or something? I'm full of confidence. Everybody is full of confidence about getting themselves one. Narendra Modi says you are no competition. He doesn't say, people say you are no competition. He says Modi doesn't even need to come here. ये मधुसूदन मिस्त्री की तो जमानत जब्त हो जाए. देखते जाओ तुम, आगे आगे देखते जाओ. उसको थप्पा मारने का उसके हाथ में नहीं है. बड़ौदा की प्रजा के हाथ में. They will decide. You have a long day ahead of you, a very long journey still to cover. We wish you all the best, Mr. Madhusudan Mistry, for joining us on the campaign trail. Thank you so much. Thank you very much. So much. Thanks. Madhusudan Mistry there, out to prove a point. I want to go back to our audience in Vadodara and ask them. कांग्रेस आरोप लगा रही कि नरेंद्र मोदी बढ़ा चढ़ा के अपनी अकम्पलिशमेंट्स को पेश करते, कि हकीकत इतनी होती है, वो बताते इतना है. तो ऐसा क्यों होता है? वो तो उनको ही पूछो, क्योंकि अभी जो विधानसभा के इलेक्शन हुए सब कांग्रेस वाले इस तरफ आ गए हैं. क्यों आए हैं? उनको पता है कि वावाजोड़ा नरेंद्र मोदी का है और आने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ही बनने वाले हैं. विकास को देख के वो लोग डाइवर्ट हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता चला कि कौन सी पार्टी विकास कर रही है, तो जो विकास कर रही है उनके साथ उन्हें जाना है. मैं कांग्रेस के मित्रों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मधुसूदन मिस्त्री जो थोड़ा बहुत यूपी में काम कर रहे थे उनको गुजरात में भेज के अहमद भाई ने खत्म कर दिया है. उनको भी पता था कि ये राहुल जी के करीब था, तो अहमद भाई ने उसको भी खत्म कर दिया. एक उनके पास गुजरात में चलने वाली नोट है, सिर्फ अहमद भाई पटेल है. अगर उनमें इसकी हैसियत है तो नरेंद्र भाई मोदी के सामने आके लड़ कर दिखाए. राहुल गांधी ने बताया था कि नरेंद्र मोदी काम नहीं कर रहे, खाली मार्केटिंग कर रहे. अगर मार्केटिंग ही कर रहे होते तो एक बार चीज खरीद के दोबारा इंसान नहीं लेता. 15 साल से बीजेपी, आप म्यूनिसिपालिटी ले लो, तालुका पंचायत ले लो, जिला पंचायत ले लो, विधानसभा ले लो, लोकसभा ले लो, पेटा चुनाव ले लो, हर एक चुनाव में बीजेपी का ही विजय हुआ है. अगर मार्केटिंग होता तो 15 साल तक नहीं चलता. एक बार देखिए, मोदी साहब का सूत्र है कि बातें कम काम ज्यादा. नरेंद्र मोदी का यही है वादा. मेरे साथी मित्रों, जो भारत जो कि सोने की चिड़िया कहने वाला देश था, उसको कांग्रेस के कुशासन, महंगाई, बेरोजगारी ने आज जहां डाल डाल पर कांग्रेस के कौभांडी करते हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा बना दिया है. आप 2009 में इन्होंने वादा किया था कि 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे. कहां महंगाई कम की? इनका वादा था कि 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे. कहां इन्होंने नौकरियां दी? ये उनके झूठे वादे इस इलेक्शन में ओपन हो जाने वाले हैं. अगर मार्केटिंग होती तो एक बार कोई प्रोडक्ट खरीद सकता है, बार बार फेक प्रोडक्ट थोड़ी कोई खरीदता है. आपको नहीं लगता कि इस बात में दम है? सर जी, ऐसा है कि बंगाल में भी 15 से 20 साल सरकार कम्युनिस्ट की चली थी. 34 साल. हाँ, 34 साल. तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने डेवलपमेंट किया.
हाँ, लोग देते थे वोट, वो जानते नहीं थे, इसके लिए भरमा के उनसे वोट ले लिया जाता है। दूसरी बात है कि ये जो बोल रहे हैं विकास का मॉडल, मेरा मक्कर पूरा जीआईडीसी में बहुत शहर के बीच में है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ इन लोग को कि आके वहाँ बताएं, 25 रुपया जग खरीदते हैं सर, और हम लोग पानी पीते हैं, मेरा भी वहाँ कंपनी है सर। अगर अब मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि अगर रात को चले तो आप पता चल जाएगा। नरेंद्र मोदी साहब ने अभी कहा कि 15 साल से वो यहाँ पे बार बार सुनते जा रहे, बोले यहाँ पे सत्ता में है कॉज यहाँ के लोगों को तो दिखता है ना, वो बाहर लोग बोलते वो फेंकते, पर यहाँ के लोगों को तो दिखता है ना कि हाँ डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ के लोगों को दिखता है, इसी वजह से वो नरेंद्र मोदी को बार बार नरेंद्र मोदी का बोलते हैं कि वावाजूड़ा बोलते हैं, तो किस तरफ का वावाजूड़ा? ये वावाजूड़ा हमें तूफान की ओर देता है। और दूसरी बात की विकास बोलते हैं, आज की कौन सी लड़की सेफ्टी है? वो लड़की बता रही थी कि वो सेफ फील कर। सर कल ही एक लड़की की लाश मिली है, 16 साल की लड़की, याकूतपुरा में से उसकी लाश मिली है रेप करके। हेमाली का केस जो 6 महीने से हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, अभी तक उसको सजा नहीं मिली है, वो लड़के को सजा नहीं मिली है। सेक्युलरिज्म की बात करते तो हिंदुस्तान में गुजरात सिर्फ ऐसा स्टेट है कि जहां मुसलमान को अगर प्रॉपर्टी लेनी हो तो कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्या हर एक मुसलमान आतंकवादी है? हर एक मुसलमान आतंकवादी है क्या? ये कैसा कायदा? आसान धारा के नाम पे इन्होंने कायदा बना के रखा है। मैं खुद एक मुसलमान हूँ, मुझे गुजरात के बड़ौदा के सबसे पॉश एरिया में प्रॉपर्टी लेनी थी तो मुझे कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ी। मेरा पैसा, मेरे सब कुछ, मेरी मेहनत, तो मैं कलेक्टर की क्यों परमिशन लूँ? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल उन्होंने उठाया कि कलेक्टर की परमिशन क्यों लेनी पड़ती है? अगर कोई जमीन खरीदना चाहता है तो कलेक्टर की परमिशन क्यों लेनी पड़ती है? यह बात सरासर गलत है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मेरे बगल की सोसाइटी मुस्लिम सोसाइटी है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक अशांत धारा विस्तार है, वह कानून ऊपर से बना हुआ है, इसके लिए चेंज क्यों नहीं किया? अशांत धारा यानी जहाँ डिस्टर्ब एरिया। अरे आप तो नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि 2002 क्या दंगा नहीं हुआ? अगर दंगा नहीं हो तो अशांत धारा क्यों लगी है? 2002 से पहले का ये तो हटा दो ना। अगर कॉन्फिडेंस है कि अच्छा चल रहा है सब कुछ तो हटाओ अशांत धारा। हम तो वहाँ साथ में रहते ही है और साथ में ही रहते हैं, हमारी बगल की। ये बात मैं समझा नहीं। अगर पूरी शांति है, तरक्की हो रही है, संपन्न है पूरा गुजरात, तो अशांत धारा क्यों लगाई है? भैया मेरी बात सुनिए, उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो, हर एक को अपने विस्तार में शांति से रहने के लिए हर लोग अपने विस्तार में रहे, इसीलिए कहीं कम्युनल नहीं, ज्यादा लोग एक दूसरे पर चढ़ जाके दबाते। क्यों ऐसा क्यों है कि मुस्लिम बस्ती अलग हो, हिंदू बस्ती अलग हो? ऐसा क्यों? अशांत धारा से तो ये प्रॉब्लम हो रही है। हम साथ में ही रह रहे हैं। एक बात मैं सच में बताऊं कि हिंदू मुस्लिम साथ में ही रह रहे हैं। मेरे पड़ोस में मुस्लिम रह रहे हैं। मेरे घर मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ। मेरी एक बात, माय बेस्ट फ्रेंड शी इज अ मुस्लिम, माय बेस्ट फ्रेंड शी इज अ मुस्लिम। आई कैन प्रूव दैट। Just a second. It is not the matter of Hindu or Muslim. It is the matter of minorities. I am living near Tandalja. Just a second, guys. I'm giving an answer. Would you like to listen? I'm living near Tandalja. It is a minority area. If being a Hindu, I want to buy a house in Tandalja, I have to go to collector office and I have to take permission for Ashan Dhara because Tandalja is the Muslim dominant area and being a Hindu, I need to take permission. Ashan Dhara is for every minority. अगर मैं हिंदू और मैं माइनॉरिटी हूँ तो मुझे लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम के लिए। पर अगर शांति है गुजरात में तो अशांत धारा का ये सब भली बनाई बातें करते हैं ये लोग, और ये पता नहीं क्यों इलेक्शन से घबरा कर रहे हैं या किस चीज से कर रहे हैं वो तो पता नहीं, बट ये सब गलत बात हो रही है। आप आओ बड़ौदा में, आफ्टर दिस आप आओ, पूरे बड़ौदा में घूमो, कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी है तो यू कैन टेल अस। Over the past few months, we've seen an attempt made by Narendra Modi to appropriate the legacy of Sardar Vallabhbhai Patel. I just want to check out the picture that he's making. काफी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है आपका। हाँ, माहौल बनाया है। ये सब जो फ्लैग्स लगे हुए हैं और ये गाड़ी है यहाँ पे जो गरबा वगैरह हो रहा है। अभी ये कोई कैमरामैन यहाँ पे मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। एक राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज, तालियों की एक चांस हमारे पेंटर साहब के लिए। So Narendra Modi has been trying to appropriate
the legacy of Sardar Vallabhbhai Patel. But what do Patel's family, his descendants, think of this attempt being made by Narendra Modi? My colleague Simi Pasha went to Patel's village to see what his descendants say about this massive thousands of crores of rupees are being spent to build that statue. An attempt is being made to show Narendra Modi as the new Iron Man of India. Here's what Patel's descendants think of what Narendra Modi is doing. One was known as the Uniter. The other is said to be divisive. One was the champion of the Congress. The other is the face of the BJP. Two Gujarati stalwarts with more than half a century of politics between them, and one sobriquet to share, the Iron Man. When Narendra Modi's government in Gujarat launched an iron hunt to build a 182-meter-high statue of Sardar Patel in the middle of River Narmada, the Congress claimed it was an attempt by the BJP to try and usurp the legacy of a congressman. The BJP countered by saying Patel stood for unity, as does Modi, and the statue is the proof. सरदार पटेल के दिमाग में भी जो सोच थी वो देश को आजाद कराने की सोच थी। नरेंद्र भाई के दिमाग में जो सोच थी वो संघ का काम कैसे बढ़े और भारत माता को उन्नति के शिखर पर किस तरह से लिया जाए। But what about the true inheritors of the Patel name? Sardar Vallabhbhai Patel's own family. While they chose oblivion, Election Express tracked them down to Anand on the way to Vadodara from Ahmedabad. आपको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है? नहीं है। आप क्या करते हैं? अभी हमारा म्यूजिक का स्टोर है और हमारा सबवे है, सबवे रेस्टोरेंट, वो हम चलाते हैं। और पॉलिटिशियंस जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की लेगेसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी, आपको कैसा महसूस होता है? कि हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पहले तो लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, देश का विकास करने की जरूरत है। While steering clear of politics, this family believes that the Iron Man's legacy is a school of thought, something that can be acquired through practice, not force. वो लोग का थॉट कोई भी कहे कि मैं ये था, वो था, वो ये थे, उनके आदर्श से जो चलते हैं वो उनके साथ है, जो उनके विरुद्ध चलते हैं वो उसको नहीं मानते हैं। हम तो ऐसा मानते हैं उन्होंने देश के लिए जो किया है वो आज हम देखते हैं कि कोई नेता कर सकता नहीं है। बाकी तो हम देखते हैं कि सरदार का नाम से जो चलाना चाहते हैं वो अच्छा नहीं है। They may not be using Sardar Patel's name to gain political mileage, but the name itself does carry perks, giving this family a reason to smile. बेसिकली मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थी। मेरी शादी लव मैरिज के जैसे हुई यहाँ पे। तो जब मैंने अपने घर पे बोला कि मेरे को शादी करनी है पटेल फैमिली में, ये नहीं बोला कि सरदार पटेल के फैमिली में, तो दे वर लाइक कि नहीं ठीक है पटेल वटेल नहीं, देन आई सेड कि सरदार पटेल। तो देन सेड दे कम ओवर हियर। उन लोग को बहुत अच्छा लगा फैमिली, और कोई नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी इतनी अच्छी फैमिली में नहीं जाए। तो अब जब मेरे पेरेंट्स को कोई पूछता है कि आपकी बेटी ने पटेल में शादी की, तो वो लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि हाँ हमने बेटी अपने सरदार पटेल की फैमिली में अपनी बेटी दी है। एवरीबडी फील प्राउड के yes, she is the one of the Sardar Patel family, and I personally feel very proud to be a member of such a great family. While the family has welcomed Narendra Modi's idea of building a giant statue of Sardar Patel, they think it's too early to share Patel's Iron Man title with BJP's prime ministerial candidate. जो वो लोह पुरुष थे, सही बात है, और मोदी जी को बोलते हैं वो लोह पुरुष हैं, तो वो वक्त बताएगा। जैसे आज दुनिया उनको उनके काम से कहा कि वो लोह पुरुष थे, कल मोदी जी ऐसा कोई अच्छा काम करेंगे तो उनको भी लोह पुरुष मानेंगे लोगों। सही है, अपने काम से ही बोला जाता है कि वो लोह पुरुष थे। Patel's family may be wary of comparison between BJP's PM candidate and the original Iron Man, but Modi's decision to build a statue to celebrate Patel as a national icon gets a big thumbs up from them. भारत के लिए ये यूनिटी स्टैच्यू बनता है, वो एक देश के लिए
सम्मानजनक बात है। ये जो स्टैच्यू बन रहा है उसका फायदा देश के लिए भी है। एक हमारा जो सरदार पटेल का जो लोग जानेंगे पूरी दुनिया से कि वो क्या थे, कैसे थे, और पूरी दुनिया से लोग आएंगे, सब देखेंगे उसको, स्टैच्यू देखेंगे, तो देश को ही इनकम होगा। Away from the glaring eyes of the media and the political mudslinging, Sardar Vallabhbhai Patel's family is content with the respect and appreciation that he receives both from the Congress and the BJP. The family claims that the real legacy of the Iron Man is the fact that the country can today call itself one nation. With Shardul Gajjar and Kashif Siddiqui in Anand, Simi Pasha for the Election Express. Forgotten by the Congress, appropriated by Narendra Modi. सरदार पटेल को कांग्रेस भूल गई, अब नरेंद्र मोदी उनको एक बार फिर से रिवाइव कर रहे, लोगों के बीच पॉपुलर कर रहे, तो अब कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। ये गलत बात है कि सरदार पटेल को कांग्रेस भूल गई। आपने क्या किया? आपको तो सिर्फ नेहरू याद आता है या गांधी याद आता है? सरदार पटेल को तो कांग्रेस ने अपने साथ आंखों पर रखा है। नरेंद्र मोदी उसका बेनिफिट लेना चाहता है। और दूसरी बात, ये जीत की बात करते हैं ना भाजपा वाले, ये उसका विकास का मोहरा नहीं जीतता है, ये सांप्रदायिक नीति उसकी जीतती है और उसके अलावा वो लोग जीतते हैं। उसमें कोई विकास नहीं है। गुजरात में जो बात चल रही है ये तो कांग्रेस की ट्रेडिशन है। अमूल मिल्क, MS यूनिवर्सिटी, अरे मेरे बड़ौदा में 25 साल से कोई इंडस्ट्री नहीं आई है। आदमी को IPCL बेच दिया, 5 साल में IPCL बेचा, होटल बेचा, अभी नरेंद्र मोदी ने अभी अडानी को बेचा, क्या बेचा? 60 साल की बात कर रहे हैं। अब 5 साल में ये पूरा देश बेचेंगे, 5 साल में पूरा देश बेचेंगे, ये 5 साल में पूरा देश बेचेंगे। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं, जो सरदार पटेल की इमेज है उसको आगे बढ़ाने की, आपको लगता है कि आयन, क्योंकि सरदार पटेल की अकम्पलिशमेंट थी, देश को उन्होंने जोड़ा, नरेंद्र मोदी की उस लेवल पे नेशनल स्तर पे कोई अकम्पलिशमेंट है नहीं, क्या ये एक मार्केटिंग गिमिक है? नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले जिस कांग्रेस ये सरदार पटेल को लेके चलती है, जो बोलते हैं, क्लेम करते हैं कि सरदार पटेल कांग्रेस के हैं, भाई हमारे भी जो लोग थे वो भी कांग्रेस में थे, उन्होंने भी आंदोलन किया था, लेकिन महात्मा गांधी ने बोला था कि अब ये इसका कांग्रेस का विखेर देना चाहिए और बाद में पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। कांग्रेस ने वो किया नहीं। आपने जो सवाल पूछा नरेंद्र मोदी, आपने जो सवाल पूछा है, मैं इसका जवाब ये दे रहा हूं कि सरदार पटेल को आज तक उन्होंने जो अवार्ड देना था, मरणोत्तरप्रांत ऊपर जो अवार्ड देते हैं, वो आज तक नहीं दिया। अब जाके उनको याद आई, क्योंकि सरदार पटेल को आज मोदी ने फिर से, क्योंकि इसी धरती से ये सरदार पटेल है और उनकी जो प्रतिमा लगने वाली है पूरे विश्व में सबसे बड़ी अजायबी होगी, 3 गुना ज्यादा। अच्छा, खत्म करने से पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों के हिसाब से वडोदरा में कौन जीत रहा है? कांग्रेस के कुछ केजरीवाल कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि कम से कम इस शो में सबसे ज्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है वो बीजेपी का है, बहुत क्लियरली। हम खत्म करना चाहेंगे, ये माउथ ऑर्गन वाली टीम एक हमारे पास आई है। सर बताइए, इलेक्शन एक्सप्रेस का ये प्रोग्राम खत्म करते करते आप क्या बजाने वाले हैं हमारे व्यूअर्स? हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत खूब, प्लीज। कुछ भी हो, कोई भी पार्टी आए, हिंदुस्तान को अच्छा रखे, दैट इज आवर विश। चलिए स्टार्ट कीजिए, यही दुआ सबकी होनी चाहिए। स्टार्ट।
गुलसिता हमारा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। विल चार्ज जय हो, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दिस इज व्हाट आवर पेंटिंग लुक्स लाइक नाउ, द इलेक्शन एक्सप्रेस स्पेशल डन बाय राजेंद्र जी। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू टुमारो नाइट इन मुंबई। We'll be rolling out of India's commercial capital, Mumbai, tonight. See you tomorrow evening. Thank you all very much for tuning in this night.